Hello dear students, this is 7th lecture of chapter 3rd machines, and in this lecture we will learn how to solve numericals related to pulley. So students, please open your book Concise Physics, page number 68. Today we will solve each and every numericals one by one from starting, and let's start the first question. Our first numerical of this book is question number first. A woman draws a water from a well using a fixed pulley. The mass of bucket and water together is 6 kg. The force applied by the woman is 70 Newton. Calculate the mechanical advantage. G is equal to 10 meter per second. In this question stands mass of bucket with water is given. Bucket with water. This is the mass. It means this is equal to 6 kg. Okay. Students, in this question, the mass of bucket with water is given 6 kg. Mass of bucket with water is 6 kg. And the force applied to woman is 70 Newton. The force applied by the woman is 70 Newton. First of all, student, mass of bucket and water is 6 kg. Then load will equal to load of bucket with water. Load is a force and load will equal to mass into G, M into G. So M into G, this will equal to 60 Newton. This will be the value of load L. Okay. Now force applied by woman F, this will equal to 70 Newton. It means, suppose this is a pulley, single fixed pulley, a woman which are applying a force of 70 Newton, this is effort, and the load which is being made 60 Newton. It means here load is equal to 60 Newton and effort is applied by the woman is 70 Newton. And in this question, mechanical advantage is asking. Mechanical advantage, this will equal to load upon effort. Load upon effort. Load is given, load 60 Newton and effort is given 70 Newton. It means this force applied by the woman is effort and the weight is load. 60 upon 70, 6 by 7, this will equal to 0.86. Second question stands, a fixed pulley is driven by a 100 kg mass falling at a rate of 8 meter in 4 seconds. It lifts a load of 75 kg. Calculate the power input to the pulley taking the force of gravity on 1 kg as 10 Newton and the efficiency of the pulley. And the third question is the height to which the load is raised in 4 seconds. This is a 4 second. Okay. In this question stands, एक पुली है जिसपे 100 kg का मास को सबटेंड किया गया और वो 100 kg मास जो है वो 8 मीटर 4 सेकेंड में शिफ्ट हो रहा है और वो 75 kgf के लोड को कैरी कर रहा है. इट मीन्स दिस इज अ पुली और इससे 75 kgf का लोड है और इसे जो पुल कर रहा है, ये पुल मैनुअली नहीं हो रहा है, इसे पुल किया जा रहा है 100 kg के ब्लॉक से. 100 kg मास के ब्लॉक से क्या हो रहा है, इसे पुल किया जा रहा है और ये जो 100 kg का मास है ये 8 मीटर इन 4 सेकंड में शिफ्ट हो रहा है. देन फर्स्ट क्वेश्चन, पावर कितना होगा, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, W अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम को ही पावर बोलते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एफर्ट फाइंड आउट करेंगे. एफर्ट विल इक्वल टू, एफर्ट हम कितना अप्लाई करें, तो ये 100 kg का जो ऑब्जेक्ट है दूसरे शिफ्ट में हमने दूसरे जो ये पुली का एफर्ट वाला पॉइंट था, एफर्ट पॉइंट में 100 kg का जो ब्लॉक सबटेंड किया गया है, ये 100 kg का ब्लॉक कितना एफर्ट लगाएगा, तो 100 इंटू अपने वेट के लॉन्ग, जितना इसका वेट होगा तो 100 इंटू जी, mg फोर्स लगाएगा. इट मीन्स 100 इंटू जी, दिस विल बी द एफर्ट फोर्स. जी की वैल्यू यहाँ पे हमने 10 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एफर्ट. ओके. एंड डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट कितना हो रहा है, जो हम अप्लाइड हो रहा है इस ब्लॉक की वजह से कितना शिफ्ट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट इज 8 मीटर एंड लोड जिसे कैरी कर रहा है, लोड इज गिवन इन क्वेश्चन
load L is given 75 kgf. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. अब इसमें हमें पूछ क्या रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पावर पूछ रहा है, देन पावर इज इक्वल टू, पावर विल इक्वल टू एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट. एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने क्यों लिखा, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. कितना फोर्स अप्लाइड करा, दिस फोर्स इज इक्वल टू एफर्ट, एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कौन सा, एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट, तो एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड एफर्ट इज गिवन 1000 and displacement is given 8 meter upon time is 4 second. This will cancel out 4 to the 8 and 1000 into 2, this will equal to 2000 and the unit of power is watt. This will be the answer of first question. Now second question part B, the efficiency of the pulley. Here efficiency is asking, efficiency का हम दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. पहला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि लोड इंटू लोड आर्म अपॉन एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, या फिर हम ऐसा यूज कर सकते हैं कि इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लें, वेलोसिटी रेशियो निकाल लें और दोनों की वैल्यू को पुट कर दें. देन मैकेनिकल एडवांटेज मीन्स लोड अपॉन एफर्ट. ओके, लोड अपॉन एफर्ट मीन्स स्टैंड्स, लोड इज गिवन 75 kgf, 75 kgf मीन्स 750 न्यूटन. Okay, and effort is 1000. This will equal to 0.75. Now velocity ratio will equal to effort displacement upon load displacement. तो एफर्ट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8 मीटर, और जितना इस सिंगल फिक्स्ड पुली के केस में जितना ये एफर्ट डिस्प्लेस करेगा उतना ही लोड, मतलब जितना रस्सी नीचे आएगा उतना ही रस्सी ऊपर जाएगा सिंगल फिक्स्ड पुली के केस में. इट मीन्स एफर्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन लोड डिस्प्लेसमेंट, दिस विल इक्वल टू 1. और यहां से अगर हम इफिशियंसी फाइंड आउट करें, इफिशियंसी विल इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, दिस विल इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इज 0.75 अपॉन वेलोसिटी रेशियो इज 1, दिस विल इक्वल टू 0.75. और इफिशियंसी परसेंटेज में होता है इसलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल इक्वल टू 75%. This will be the efficiency. Third question, the height to which the load is raised in 4 seconds. 4 सेकंड में कितना हाइट रेज करेगा, तो सिंपल सा दिया हुआ है 8, तो थर्ड का डायरेक्ट हम लिख देंगे 8 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ सिंगल फिक्स्ड पुली एंड अ मूवेबल पुली both are separately used to lift a load of 50 kgf to same height. Compare the effort applied. It means stands in single fixed pulley. हमें पता है, देखो यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास दो पुली है, एक सिंगल फिक्स्ड पुली है. ओके, सिंगल फिक्स्ड पुली से हमें 50 kgf का लोड को क्या करना है, लिफ्ट करना है. एंड हमारे पास दूसरा क्या है, मूवेबल पुली है. सपोज दिस इज अ मूवेबल पुली, और इस मूवेबल पुली से भी 50 kgf का लोड सबटेंड करना है, खींचना है ऊपर की तरफ. तो किसका मैकेनिकल एडवांटेज, दोनों के मैकेनिकल एडवांटेज का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है. दिस इज द मूवेबल पुली एंड दिस इज द फिक्स्ड पुली. ये फिक्स्ड पुली हो गया. ओके, तो दोनों के केस में हमें पता है कि इन सिंगल फिक्स्ड पुली मैकेनिकल एडवांटेज इज 1. सिंगल फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है. एंड मूवेबल फिक्स पुली, सिंगल मूवेबल फिक्स पुली का कितना होता है, सिंगल मूवेबल पुली का जो होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है. ये आपको याद रखना है. तो सिंगल फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1, इसका हमने प्रूफ भी करा रखा है पिछले लेक्चर में. देन यहाँ पे हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज विल इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट. हमें कंपेयर क्या करना है, कंपेयर द एफर्ट अप्लाइड, हमें दोनों का एफर्ट को कंपेयर करना है. देन एफर्ट in single fixed pulley is equal to load upon mechanical advantage. Then effort in fixed pulley, सिंगल फिक्स्ड पुली को हम शॉर्ट में लिख देंगे, फिक्स्ड पुली विल इक्वल टू लोड कितना दिया हुआ है, 50 kgf. ओके, 50 kgf को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, देन 50 इंटू 10. एंड मैकेनिकल एडवांटेज कितना दिया हुआ, मैकेनिकल एडवांटेज जो है होता है सिंगल फिक्स्ड पुली में 1 होता है. दिस विल इक्वल टू 500. ओके, अब यहाँ पे अगर हम यही सेम कंडीशन फाइंड आउट करें मूवेबल के लिए, दिस इज द फर्स्ट केस इन सिंगल
मूवेबल पुली, सिंगल मूवेबल पुली, एफर्ट मूवेबल विल इक्वल टू लोड इन अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। जो हमें पता है सिंगल मूवेबल पुली में मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, मैकेनिकल एडवांटेज सिंगल मूवेबल के लिए 2 होता है। देन हम कितना लिखेंगे, लोड की वैल्यू 50 इंटू 10 अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज इज 2, दिस विल इक्वल टू 250। नाउ रेशियो में फाइंड आउट करना, कंपेयर करना है। इट मीन्स एफर्ट इन फिक्स्ड अपॉन एफर्ट इन मूवेबल। दोनों के एफर्ट को हमने क्या किया, अगर फिक्स कर दिया और मूवेबल दोनों का रेशियो फाइंड आउट किया तो फिक्स का कितना 500, मूवेबल का 250, दिस विल इक्वल टू 2:1 या 2/1। 2/1 को रेशियो में लिखेंगे तो 2:2। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 पुलीज, अ लोड ऑफ 75 kgf is raised with an effort of 25 kgf. Find the mechanical advantage, the velocity ratio and the efficiency. In this question stands, first question, mechanical advantage is asking. Mechanical advantage will equal to load upon effort। यहाँ पे लोड जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, लोड इज 75, ओके, एंड एफर्ट इज गिवन 25। दोनों kgf में, तो आप 10 से इसे न्यूटन में कन्वर्ट भी कर सकते हो, नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस विल इक्वल टू 25 इंटू 75, 3, ओके। एंड वेलोसिटी रेशियो, फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन, द वेलोसिटी रेशियो VR विल इक्वल टू नंबर ऑफ पुली, क्योंकि हमें पता है कि टैकल सिस्टम में जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो नंबर ऑफ पुली के इक्वल होता है। एंड इन दिस क्वेश्चन 3 पुली आर कनेक्टेड, देन द वेलोसिटी रेशियो विल इक्वल टू 3। एंड द थर्ड क्वेश्चन, efficiency, the efficiency will equal to, efficiency means mechanical advantage upon velocity ratio. This will equal to, mechanical advantage is 3, velocity ratio is also 3, this will equal to 1। 1 means stands 1 into 100 अगर करेंगे, परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 5, this is also very simple। A block and tackle system has 5 pulleys. If an effort of 1000 Newton is needed in downward direction to raise a load of 4500 Newton, calculate mechanical advantage, velocity ratio and efficiency। Very simple question stands। In this question, block and tackle system इसमें 5 पुली है। It means velocity ratio कितना हो जाएगा 5, because velocity ratio will equal to number of pulleys used। So first of all stands mechanical advantage we have to find। Mechanical advantage will equal to load upon effort, Here load is given 4500 Newton and effort is given 1000 Newton। This will equal to 2 to 0 will cancel out, 4.5। Here mechanical advantage is 4.5। And the second question, this is the solution of first and second question, velocity ratio। Velocity ratio means number of pulleys used, this will equal to 5। And the C part, efficiency will equal to mechanical advantage upon velocity ratio, this will equal to 4.5 upon 5, because mechanical advantage is 4.5 and velocity ratio is 5। एंड हमें इफिशियंसी परसेंटेज में लिखना होता है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल इक्वल टू 0 एंड डेसिमल विल शिफ्टेड 45 100 अपॉन 5, इट मीन 0 0 विल कैंसिल आउट, 5 9 जा 45, 9 into 10 90, efficiency will 90%। Stands question number 6। In figure 3.32, draw a tackle to lift the load by applying the force in downward direction। Mark in the diagram the direction of load and effort E। इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक आपको दिया, एक डायग्राम दिया हुआ 3.32 के नाम से। और इस क्वेश्चन में पहला आपको क्या शिफ्ट करना है कि टैकल सिस्टम में आपको फर्स्ट रूफिंग करनी है। आपको यहाँ पे जो भी आपका रूफ है उस रूफ को फिक्स करना है और लोड एंड एफर्ट को डिनोट करना है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि जब भी आपके पास 5 पुली दिए हों, सबसे पहले आप लोड को सबसे अपवर्ड वाले में स्ट्रिंग को या फिर रूफ को आप इंसर्ट करोगे। एंड ये जो आपका होगा इसे आप खींच रहे हो इधर की साइड में, इट मीन्स दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। यहाँ पे आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो
और ये रोप है सबसे लास्ट वाले से आपको क्या करना है, कनेक्ट करना, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इसलिए आप स्केल का यूज करोगे। ओके, इसे सबसे लास्ट से आपने कनेक्ट कर दिया। फिर आपको क्या करना है, इसको लेके जाना है यहाँ पे। फिर किससे कनेक्ट करना है, सेकंड वाले से कनेक्ट करना है। सेकंड वाले से कनेक्ट करने के लिए आप बिल्कुल इस तरीके से कनेक्ट करोगे। सेकंड वाले से कनेक्ट करने के बाद फिर आप इस रूफ को सेकंड वाले से रोटेट करते हुए फिर किससे लेके आओगे, सेकंड लास्ट से। सेकंड लास्ट से आपने कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। ओके, एंड सेकंड लास्ट के बाद आप इस रूफ एंड ये वाला जो है स्टैंड्स, इसे आप सीधे लेके जाओगे यहाँ से रोटेट करते हुए, फिर आप इसमें लाके अटैच करो, क्योंकि जहाँ पे एंड होता है उसके ठीक फ्रंट पे हम क्या करते हैं, मैच करा देते हैं। इसे भी आप बिल्कुल स्ट्रेट ही लेके जाओगे इस तरीके से। ओके, दिस विल बी द कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग इन द टैकल सिस्टम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड लोड एंड एफर्ट को रिप्रेजेंट कर देना है, एंड हमें टेंशन फोर्स को रिप्रेजेंट करना होता है, जिसकी हेल्प से हम मैकेनिकल एडवांटेज, एफर्ट सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लोड के रिस्पेक्ट में अगर हम टेंशन फोर्स फाइंड आउट करें तो ये स्ट्रिंग लोड की वजह से क्या होगा, टाइट होगा, और इस पुली के रिस्पेक्ट में जो टेंशन फोर्स होगा वो आउटवर्ड बाहर के साइड में, यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा वो भी बाहर के साइड में। ओके, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन फोर्स बाहर के साइड में, और इस स्ट्रिंग में भी जो टेंशन फोर्स होगा वो बाहर के साइड में, और ये जो स्ट्रिंग होगा इसमें भी आउटवर्ड बाहर के साइड में होगा। इट मीन जो टेंशन फोर्स यहाँ पे ओवरऑल है 1, इस स्ट्रिंग का 1, ओके, एंड इस स्ट्रिंग का 2, इस स्ट्रिंग का 3, ये स्ट्रिंग 4 एंड ये स्ट्रिंग 5। इट मीन्स 5 ब्लॉक है तो 5 टेंशन फोर्स होंगे। ओके, एंड सेकेंड पार्ट, इफ द लोड इज रेज्ड बाय 1 मीटर थ्रू विथ व्हाट डिस्टेंस विल द एफर्ट मूव। इट मीन्स डिस्टेंस की अगर लोड जो है 1 मीटर, लोड इज रेस्ड 1 मीटर, क्या हो रहा है, लोड अगर उठाया जा रहा है, लोड को अगर हम 1 मीटर मूव कर रहे हैं, इट मीन्स थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल द एफर्ट मूव, एफर्ट कितना मूव होगा। तो हमने बताया था जितने पुली होंगे उतने ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, 1 मिनट सबका मूव होगा, इसलिए टोटल जो एफर्ट मूव करेगा 1 इंटू, अगर 5 पुली लगे हुए हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर ए तो हो गया, यहाँ पे बस रिप्रेजेंट करना था। सोल्यूशन ऑफ बी में effort move will equal to 1 meter of each pulley, 1 into total distance 1 2 3 4 5 है तो 1 into 5, this will equal to 5. Effort move will 5 meter. This will be the answer. Okay, now second question, if the load is raised by third question, state the number of strands of tackle supporting the load. नंबर ऑफ स्टैंड्स कितना, 1 2 3 4 5, डायरेक्ट हम लिख देंगे 5, सी विल ऑल्सो इक्वल टू 5। ओके, एंड डी क्वेश्चन, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। मैकेनिकल एडवांटेज विल इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। हियर लोड इज गिवन, लोड 1 2 3 4 5, दिस L विल इक्वल टू 5T, एंड दिस एफर्ट, इस एफर्ट को कौन बैलेंस कर रहा है, सिंगल 1T, इसको पहले हमने डेरिवेशन में से प्रूव भी किया। इट मीन्स लोड इज 5T एंड एफर्ट इज सिंगल T। मैकेनिकल एडवांटेज विल इक्वल टू 5T अपॉन 1T, TT विल कैंसिल आउट, मैकेनिकल एडवांटेज विल इक्वल टू 5। On question number 7, a pulley system has a velocity ratio 3. Here velocity ratio is given 3. It means in this pulley system there are number of pulleys 3. Draw a diagram showing the point of application and the direction of load, effort and the tension. If lift a load of 150 Newton by an effort of 60 Newton, calculate its mechanical advantage. Simple question, velocity ratio 3 दिया, it means number of pulley is 3, और 3 पुली के लिए हमने बताया था सबसे पहले इस पुली को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपवर्ड में ग्रेटर रखेंगे एंड डाउनवर्ड में लोअर रखेंगे। इट मीन्स कि अगर 3 है तो ऊपर हम 2 रखेंगे, ऊपर में 2 पुली होगा, 1 and 2 pulley, this is the 1 block, एंड डाउनवर्ड में सिंगल 1 पुली होगा, एंड जो लोड होगा वो इस डाउनवर्ड से अटैच होगा, एंड लोड इज गिवन 150 न्यूटन। ओके, दिस विल बी द सिस्टम ऑफ 3 पुली। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रिंग को प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रिंग हमने बताया सबसे अपवर्ड में प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे ये हम यहाँ से पुल करते हैं, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, एंड इस सबसे लास्ट वाले को सबसे फर्स्ट वाले सबसे लास्ट से कनेक्ट करते हैं यहाँ से, और फिर सबसे लास्ट वाले को सेकेंड लास्ट से,
और जहां पे फिनिश होता है उसके ठीक सामने वाले को हम क्या करते हैं, मैच करा देते हैं। दिस विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सिस्टम। और यहाँ पे हम टेंशन फोर्स को अगर रिप्रेजेंट करें, देन टेंशन विल इक्वल टू लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन टेंशन इस पुली के रिस्पेक्ट में, इस स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड, इस पुली के रिस्पेक्ट में इस स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड, एंड इस स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड। इट मीन्स नंबर ऑफ टेंशन 1 2 3 एंड नंबर ऑफ, यहाँ पे एफर्ट को कौन बैलेंस कर रहा है, सिंगल। एडवांटेज का फाइंड आउट करना है। इफ लिफ्ट लोड ऑफ 150 न्यूटन, अगर 150 न्यूटन का लोड, इस एल की वैल्यू 150 न्यूटन कर दें एंड एफर्ट की वैल्यू 60 न्यूटन कर दें, देन व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज। देन मैकेनिकल एडवांटेज विल इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। Load upon effort means load is given 150 and effort is applying 60, and 15 upon 16, 3 5 ja 15, 3 2 ja 6, 5 by 2, it means 2.5. This will be the mechanical advantage of this system. And in second part is the pulley system ideal, give reason. क्या pulley system ideal है? तो यहाँ पे velocity ratio in this question is given 3 and mechanical advantage is 2.5, and we know that efficiency of any pulley is mechanical advantage upon velocity ratio. Mechanical advantage is 2.5 and velocity ratio is 3 into 100. It means this decimal will shifted 0 0 and 250 upon 3, 250 by 3, this will equal to 3 8 ja 24 and 3 3 ja 9.33 ja 9, 83.33%, 83.33%. It means here efficiency of this pulley system is not 100%. It means this is not a case of ideal condition. So we can write here, give the reason, because efficiency of this pulley system is not 100%. This will be the answer. In question number 8 student, figure 3.33 shows a system of 4 pulleys. The upper 2 pulleys are fixed and the lower 2 are movable. Draw a string around the pulleys. Also show the point of application and direction in which the effort E is applied. What is the velocity ratio of the system? What are the load and effort of the system related? Effort of the pulley system related. What assumption do you make in arriving of your answer input? स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन आपको एक पुली सिस्टम दिया हुआ है जिसमें 4 पुली है और यहाँ पे आपको एफर्ट का डायरेक्शन, लोड का डायरेक्शन और आपको स्ट्रिंग इस पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको स्ट्रिंग सबसे अपवर्ड में, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, और बिल्कुल स्ट्रेट ले आके कहाँ से मोड़ना है, लास्ट से, ओके, एंड लास्ट वाला सेकेंड लास्ट से, एंड सेकेंड लास्ट फिर इसके सेकेंड लास्ट से, एंड ये आपका शिफ्ट हो जाएगा कहाँ से, ये आपका यहाँ से जाके यहाँ पे फिनिश हो रहा है। इट मीन जहाँ पे फिनिश हो रहा है वहीं पे हम क्या करते हैं, इसके जस्ट फ्रंट वाले पे कनेक्ट कर देते हैं। दिस विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। एंड सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रिंग अराउंड द पुली, ऑल्सो सो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन इन विच द एफर्ट, डायरेक्शन एफर्ट इधर हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टेंशन फोर्स टी इधर, टी इधर, एंड इस स्ट्रिंग में टी इधर और यहाँ पे भी टी इधर एफर्ट। जितने भी स्ट्रिंग 1 2 3 4 स्ट्रिंग 4 टेंशन। What is the velocity ratio of this system? Velocity ratio, solution of question number B. Velocity ratio will equal to number of pulleys in system. Number of pulleys are 4, so the velocity ratio will 4. Okay. How are the load and effort of the pulley system related? यहाँ पे कोई भी लोड हम लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, एल लोड लिफ्ट कर रहे हैं, एफर्ट एल। अगर वेलोसिटी रेशियो 4 है देन इट मीन्स सबसे पहले इसका मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज विल इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट मीन्स लोड इज गिवन 1 2 3 4 टी एंड एफर्ट इज गिवन सिंगल टी, बिकॉज दिस एफर्ट इज बैलेंस बाई 1 टेंशन फोर्स। इट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज इज 4.
4 मीन स्टैंड्स, यहाँ पे जो लोड एंड एफर्ट के बीच का रिलेशन है वो कितना है, 4 लोड है तो एफर्ट कितना 1 है. इट मीन्स वी कैन राइट हेयर लोड विल इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफर्ट. इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, लोड विल इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफर्ट. दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन लोड एंड एफर्ट. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ डी, व्हाट एजम्पशन डू यू मेक इन अराइविंग एट योर क्वेश्चन इनपुट. इस पूरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा है वो 4 आ रहा है, 4 पुली के लिए वेलोसिटी रेशियो 4 आ रहा है. तो इस कंडीशन में हम देखते हैं जब भी हमारा मैकेनिकल रेशियो 4 पुली के लिए 4 आए, 5 पुली के लिए 5, 3 पुली के लिए 3 है, इट मीन दिस इज द केस ऑफ आइडियल. और आइडियल केस कब होता है, जब इस पुली का फ्रिक्शन हम जीरो कंसीडर कर लें कि कोई पुली का फ्रिक्शन नहीं है, पुली का कोई भी वेट नहीं है, जो एफर्ट अप्लाइड कर रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है, बिल्कुल डाउनवर्ड, कोई किसी एंगल पे अप्लाइड नहीं हो रहा है. इट मीन दिस इज द केस ऑफ आइडियल केस. सो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर डी में, दिस इज केस ऑफ आइडियल सिस्टम. सो फर्स्ट एजम्पशन क्या होगा, फर्स्ट एजम्पशन विल बी देयर इज नो फ्रिक्शन. सेकेंड एजम्पशन विल बी weight of pulley is negligible. And third assumption will be the effort is applied downward. इट मीन्स नो फ्रिक्शन का मतलब कि पुली और सरफेस के बीच में, पुली और वेयरिंग, ये जो पुली है और ये जो वेयरिंग जिसके अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, इसके बीच में जो फ्रिक्शन हो क्या है, जीरो है, नो फ्रिक्शन है. तो देयर इज नो फ्रिक्शन इन द पुली वेयरिंग, ऐसा आप लिख सकते हो, इन द पुली वेयरिंग से मॉडिफाइड कर लेना. Okay, thank you, student. This is sufficient for this class, and next class we will discuss more numericals related to pulley. Then we will start the new chapter. Thank you.